going to be moving forward very, very shortly. Asavri, over to you. Thank you, Uday. Of course, the next session is going to be really interesting. It's on cinema and education. And to take this conversation forward, could I please request Mr. Manoj Mittal, founder, DAV United, to join us on the stage. It's going to be a very interesting panel that's going to take place. Mr. Uday Pratap Singh, senior editor, NewsX, could I please request you to take this session forward? Thank you. And next in First in Class 2026, we are going to be having a very important conversation, of course, with founder DAV United, Manoj Mittalji. And DAV, of course, is a name that doesn't need any introduction. And a very interesting platform of DAV United has been created by Mr. Mittal. It gives us many lessons on how to integrate all players in the education system, like we're seeing today as well on our First in Class stage. And also, of course, we're going to be talking about mass media as well and how it can be used in education. So, Mr. Mittal, firstly, can you tell us more about DAV United, what the idea behind it was, and how it's really helped the education system? Right. But before I begin, so I want to thank you, Aishwarya ji, for organizing such a beautiful conclave. And I also want to share my sense of pride, क्योंकि हमारे बीच में हमारे मंत्री जी जो बैठे हैं वो भी DAV से और हमारे सीनियर हैं. Thank you, sir, for inspiring us. And I am very proud to know that you are an alumni of Hansraj College. I am also very proud of that. Thank you, sir. Thank you, sir. और बिट्टू सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है. आप भी DAV कैंपस में आ चुके हैं. So thank you for that. So मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम ने पावर ऑफ यूनिटी को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं किया. अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्टली कोई मैनेजमेंट एक स्कूल खोलता है, उसके अंदर फिर कोई प्रिंसिपल आते हैं, फिर कुछ टीचर्स आते हैं और उसके बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को उसमें एडमिशन दिलाते हैं. उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं और फिर वो एलुमनाई बनते हैं. लेकिन अगर आप लार्जली देखें तो जब स्कूल चल रहा होता है तो इट इज़ लार्जली बिटवीन टीचर्स स्टूडेंट्स. एलुमनाई, पेरेंट्स डे टू डे प्रोग्रेस ऑफ द स्कूल में बहुत ही कम एक्टिव रोल प्ले करते हैं. सो DAV United इज नथिंग बट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू यूनाइट ऑल द पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एलुमनाई, मैनेजमेंट, इवन नेबरहुड, even well-wishers of the school in the neighborhood on a single platform. And the common objective is that we believe that education institutions are not private properties. Yes. They are social infrastructure and everybody has a role to play in it. And imagine if everybody is playing a constructive role, what power of unity can make available. And what has been the impact after this was created? Yeah, okay. So let me tell you a very interesting incident. When COVID happened, there was an alumni जिनकी मदर को एक पर्टिकुलर इंजेक्शन चाहिए था और उनके किसी दूसरे DAV स्कूल के लोगों ने वो इंजेक्शन ऑर्गेनाइज किया, किसी और थर्ड ब्रांच के लोगों ने उनके घर पे पहुंचाया. So imagine this kind of an impact of the power of unity. And there are so many thousands of stories in DAV United where people have been meaningful. आज बहुत सारे ongoingly senior alumni आके current students को mentor करते हैं ongoingly. And that subject expertise is not available at a price. You know, how important is this collaborative approach? Because हम कई बार देखते हैं कई संस्थाएं हैं जहां alumni और प्रिंसिपल के बीच में असमंजस है. कई बार पेरेंट्स और टीचर्स की नहीं बनती है. तो हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस इंटीग्रेशन? बिकॉज ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, अलमनाई भी, पेरेंट्स भी, स्कूल मैनेजमेंट भी, टीचर्स भी, प्रिंसिपल भी, ऑफ द सेम एजुकेशन सिस्टम. सो ये सामान्य रूप से काम करना, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट? सर, मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो नेसेसिटी है. मतलब इसके बिना तो वो जस्टिस ही नहीं होगा जब तक ये सारे स्टेक होल्डर्स सबका एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टूडेंट है उसको एम्पावर करना, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन, सब लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं.
लेकिन अगर वो अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, जैसे अभी आशीष सूद जी बोल रहे थे कि हमारे टाइम में, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मुझे मेरे पेरेंट्स से भी मार पड़ी है और मेरे टीचर से भी मार पड़ी है, लेकिन वो जो मार पड़ी थी उसके पीछे जो इंटेंशन थी वो मेरी ग्रोथ थी। आज अगर पेरेंट्स और टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो दोनों का मेन पर्पस है उस बच्चे को एम्पावर करना, वो तो सेल्फ डिफीटिंग हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो नेसेसिटी है। और आज के ये फर्स्ट इन क्लास प्लेटफॉर्म के बारे में भी आप क्या कहेंगे? बिकॉज ये भी एक बहुत ही कोलैबोरेटिव सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म बन गया है आज, वेयर वी आर सीइंग स्टूडेंट्स आल्सो ऑन दिस स्टेज, वी हैव सीन प्रिंसिपल्स आल्सो ऑन दिस स्टेज, पेरेंट्स भी आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आए हैं, गवर्नमेंट के मंत्री भी आए हैं, सब आए हैं। यू नो, हाल ही में अभी बजट पेश हुआ और we had a top corporate on the show on NewsX, and they were saying that this is a government that listens to the stakeholders. Industry and industry bodies take their representations to government, and government has included some of those provisions in the budget. So how important is this collaborative approach as well, and how can first in class help in this collaborative approach? तो मैं पहले तो ये बोलूँगा कि मैं because being part of DAV, which is the largest education network, मैं बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ। तो ऐश्वर्या जी, मैं स्पेशली आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैंने यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की जो कि बहुत ही रेयर है। पहली बात तो संडे के दिन आपके पास 3-4 इतने बड़े बड़े पावरफुल पॉलिसी मेकर्स आप ला पाए, आप इतने सारे इलिस्ट्रस और गवर्नमेंट स्कूल्स और हर लेवल के स्कूल्स को आपने जोड़ा, आपने वैरायटी, आपने स्टूडेंट्स को मंच पे आने का मौका दिया, आपने टीचर्स को दिया, आपने काउंसलर्स को दिया। ये बहुत रेयर है, मैंने ऐसा नहीं देखा। सो थैंक यू फॉर दैट। और शायद मैंने पढ़ा दैट दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, First event in the first in class platform. yeah, so I pray to Supreme Energy, and I pray that this becomes every year affair, this becomes bigger, better. और मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा था, एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आपकी जो कॉन्क्लेव है नेक्स्ट, वो डिफरेंट जो मीडिया हाउसेस की कॉन्क्लेव होती है, विच इज मोर द स्पीकर सेंट्रिक, इट वाज इशू सेंट्रिक। तो मुझे आज भी वो यही लगा कि आपका ऑब्जेक्टिव किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड या किसी को हाईलाइट करने का नहीं है, रादर यू आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन। बिल्कुल, यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था एनएक्सटी पे कि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो नीति सेंट्रिक है, नॉट नेता सेंट्रिक। आखिर में मित्तल जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूं ऑन मास मीडिया एज वेल। नाउ दिस इज फिल्म्स, this is OTT, this is media as well, like news, and this is books. How can they play a role in educating the public as well for the right intentions? बहुत सी फिल्में बनती हैं सही विषयों पर, बहुत से बुक्स लिखे जाते हैं on good issues. Media platforms like us do programs as well like this. But how do we do more of this? Mass media का education पर क्या रोल और असर होना चाहिए और हो सकता है? तो मेरा और सारे कॉमन सबका ये मानना है कि हम सब लोग इंडिया में सिनेमा बहुत देखते हैं। पहले तो किताबें भी बहुत पढ़ते थे और इवेंट्स में भी बहुत जाते थे, लेकिन अब हो क्या रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी भी है कि बहुत सारे सेक्टर्स जैसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन लिटरेचर, थिएटर, स्कूल्स और उनको आसपास काम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप देखो इंडिया में बहुत सारी फिल्में जो कि शायद देखी भी नहीं जानी चाहिए और वो 800 करोड़ का बिजनेस कर रही होती हैं, और ऐसी बहुत सुंदर फिल्में होती हैं जिनमें बहुत बढ़िया मैसेज होता है, जिनको शायद स्कूलों को दिखाना मैंडेटरी करना चाहिए। लेकिन क्योंकि स्कूल्स को नहीं पता कि वो पिक्चरें बनी हैं, या स्कूल्स को नहीं पता कि इस हफ्ते किसकी किताब रिलीज हुई है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट इंडियन who listed his company on New York Stock Exchange, Mr. Kanwal Rekhi, was on a 30-day trip in India releasing his book. But most of the Indian schools did not know that. We were fortunate enough that we could take him to DAV school. He was there to address students. But he could have gone to 10 other schools in India. So these are the programs which should go further, and everybody should work in unity. So, and that will, I think, transform the country.
That's a great message to end on. Thank you very much, Manoj Mittalji, for joining us at the First in Class Summit. Thank you very much. Thank you. That was a wonderful session. Shri Ravni.